So in this class, we will discuss mainly about formula writing, and we will discuss mainly about formula writing of ionic compounds. तो पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए what is the meaning of the term ionic compound, because we will focus on formula writing of ionic compound only. So you write down meaning of this term, ionic compound. Okay. So वैसे ionic compounds का simple meaning है compounds consisting of ions. Compounds consisting of ions. एक general meaning है. Okay. For example, sodium chloride is an ionic compound. Is an ionic compound which consists of sodium ion Na plus and chloride ion Cl negative. Na positive and Cl negative, sodium ion and chloride ion. बट आप लोगों को ये भी जानना चाहिए इन कंपाउंड्स के बारे में एक स्पेशल बात, दैट these compounds are formed by transfer of electrons between atoms. तो ये कंपाउंड्स कैसे बनता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटॉम्स. जैसे सोडियम और क्लोरीन में जब रिएक्शन होगा, सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, सो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. Na will form Na positive, Cl will form Cl negative, and they will together form NaCl. They will together form what? NaCl. तो इस तरह जो भी कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव आयन बनेगा और एक नेगेटिव आयन बनेगा. एंड दिस पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयोनिक कंपाउंड्स? So ionic compounds are the compounds consisting of ions and which are formed by transfer of electrons between atoms. और ज्यादा स्पेसिफिकली आपको जानना चाहिए, these compounds are formed between metal atoms and non-metal atoms. Metal atoms and non-metal atoms. तो यहाँ पे सोडियम मेटल एटॉम है और क्लोरीन नॉन मेटल एटॉम है. मेटल एटॉम ऑलवेज पॉजिटिव आयन बनाएगा, नॉन मेटल एटॉम ऑलवेज नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा. मेटल एटॉम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल एटॉम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सो हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स? इफ आई आस्क यू, वंशिका एंड कुंजल, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So have you noted down everything? Yes, sir. Okay, Vanshika, have you noted down? Vanshika, have you noted down? Whatever is there on the screen. Your mic is off, I think, Vanshika. I hope you have noted down. I am going to erase this part.
So I discussed about ionic compounds. लेकिन ionic compounds किससे बनता है? Ionic compounds are formed of ions. तो हम लोगों को फॉर्मूला राइटिंग के पहले ions का भी नॉलेज होना पड़ेगा in detail. So I am going to discuss about ions. What are ions? Just look at here. Atoms or group of atoms. Atoms or group of atoms with positive or negative charge. With positive or negative charge are called ions. लेकिन आप स्पेसिफिकली ये जान लो that ions are formed by transfer of electrons. By transfer of electrons. Ions are formed by transfer of electrons. So if I ask you what are ions, the simple answer is atoms or group of atoms with positive or negative charge, they are called ions. And these ions can be classified into two groups. Can you tell me the name of these two groups? Cations and anions. Good. Cations and anions. So first about cations. Cations are positively charged ions. Cations are positively charged ions. Now, if I ask you what are anions? Anions are negatively charged ions. They are negatively charged ions, anions. So if I ask you, what do you mean by the term cation? What do you mean by the term anion? Cations are positively charged ions, anions are negatively charged ions. Now look at the examples here. Na positive, sodium ion. Ca2 positive, calcium ion. Mg2 positive, magnesium ion. Al3 positive, aluminium ion. Then NH4 plus. Can you name this ion? Anyone? Can you name NH4 plus ion? Any one of you? NH4 plus ion. If you don't know the answer, I can give you the answer. This one is ammonium ion. This one is ammonium ion. ओके इस आयन को क्यों यहाँ डिस्कस किया गया, ये थोड़ा स्पेशल है बात यहाँ. नॉर्मली मेटल एटॉम्स फॉर्म पॉजिटिव आयन, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे आर बोथ नॉन मेटल्स. सो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए, गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव आयन which is formed by non-metals, it is ammonium ion. And negatively charged ions, look at the examples here. Cl negative chloride ion, O2 negative oxide ion, N3 negative nitride ion, SO4 2 minus, this is sulfate ion. So if I ask you what are the two types of ions, answer simple hai, cations and anions. What are cations? Cations are positively charged ions. What are anions? Anions are negatively charged ions. अगर पूछा जाए what are ions? Atoms or group of atoms with positive or negative charge are called ions. लेकिन दिमाग में सेट रखना, ions are formed by transfer of electrons. ओके जो एटॉम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जो एटॉम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. सो हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रीन? Yes, sir. एंड कुंजल, हैव यू नोटेड डाउन? Yes, sir. ओके, completed ना? Yes, sir. So I am moving to the next part. If you have noted down, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ आयंस. तो सिंपल आंसर है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ आयन इफ आई आस्क यू?
आंसर क्या होगा? Cations and anions. Cations and anions. Kunjal, if I ask you, positively charged ions are called, Cations. and negatively charged ions are called. Anions. Vanshika, if I ask you, name one positively charged ion which is formed by non-metal atoms. Ammonium ion. Ammonium ion. NH4 plus. Good. NH4 positive ammonium ion. Now we will discuss another classification of ion that will help us in writing chemical formula. आयंस का एक और क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला राइटिंग में हेल्प करेगा, लेकिन आपको कभी भी पूछा जाए एग्जामिनेशन में व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ आयंस, तो आप आंसर रखना अपना कैटायंस एंड एनायंस। अभी आयंस का एक और क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस। सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस। सिंपल आयंस, these ions are formed by one type of atoms. अगर कोई आयन एक ही टाइप का एटॉम से बना हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल आयन। जैसे वन टाइप ऑफ एटॉम है, एटॉम जैसे क्लोराइड आयन, जैसे ऑक्साइड आयन, जैसे नाइट्राइड आयन, जैसे सोडियम आयन, जैसे कैल्शियम आयन। So ये सभी ions, all these ions are formed by one type of atom, जैसे Cl क्लोरीन एटॉम से बना हुआ क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन एटॉम से ऑक्साइड आयन, नाइट्रोजन एटॉम से नाइट्राइड आयन, सोडियम एटॉम से सोडियम आयन, कैल्शियम एटॉम से कैल्शियम आयन। बट कंपाउंड आयन्स, these ions are formed by two or more type of atoms, two or more type of atoms. Okay, so अगर आयन दो या उससे ज्यादा टाइप ऑफ एटॉम से बना हुआ है देन इट इज कंपाउंड आयन। और कंपाउंड आयन्स को हम लोग एक और टर्म दे सकते हैं, दैट इज पॉली एटॉमिक आयन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? पॉली एटॉमिक आयन। ओके, so compound ions are also called polyatomic ions. Examples, if you look at the example, CO3 2 minus carbonate ion, HCO3 minus or negative, you can say hydrogen carbonate ion, then NO3 negative nitrate ion, then SO4 2 minus sulfate ion. So these are कैसा आयन? कंपाउंड आयन्स। इनको कंपाउंड आयन क्यों बोलेंगे हम लोग? बिकॉज कार्बोनेट आयन में देखो आप, कार्बन एटॉम एंड ऑक्सीजन एटॉम्स आर इन्वॉल्व्ड। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन में हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, थ्री टाइप्स ऑफ एटॉम। नाइट्रेट में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सल्फेट में सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ आयन, तो आंसर आपको कैटायंस और एनायंस देना है। लेकिन आयन्स को हम लोग और दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है, on the basis of what? On the basis of the types of atoms involved. अगर one type होगा तो simple ion, और two or more types होगा तो compound ion. Compound ions are also called polyatomic ion. Is it clear now? Will you be able to identify simple and compound ion? अगर मैं आपको पूछता हूं इसके बाद, will you be able to identify, Vanshika? If I ask you which is simple ion, which is compound ion, will you be able to identify? Kunjal, will you be able to identify? आपको समझ में आ गया? Have you understood? Have you written? Yes, sir. Have you Yes, sir. written? Yes, sir. Okay. So if I ask you, what are simple ions? Simple ions are those ions which are formed by one type of atom. What are compound ions? Compound ions are formed by two or more types of atoms. So if you have completed, just inform me once again. Vanshika, have you completed writing?
Vanshika, your mic is not properly working, I think. Is there any issue? Okay, I cannot hear you properly, Vanshika. Okay, I hope you have written. I am moving to next topic. So I discussed about the types of ions. अभी तक मैंने types of ions का बात किया है. Now if I ask you this ion, magnesium ion, is simple ion or compound ion? जल्दी से बता दो. Magnesium ion is simple ion or compound ion? Sir, simple. Simple ion. Good. Now if I ask you Cr2O7 2 minus, this is simple ion or compound ion? Cr2O7 2 minus 2 negative is simple ion or compound ion, if I ask you? Sir, compound. Compound ion, because here chromium and oxygen are involved. Chromium and oxygen are involved. So I'm asking some more examples here. SO4 2 minus, simple ion or compound ion? Sir, compound. Compound ion. Can you name this ion? Sir, sulfur and oxide. It is sulfate ion. Sulfate. Sorry, sulfate. Sulfate ion. Vanshika, is your mic working properly or any issue? Is there any issue with your mic? Just inform me in the chat box if any issue, or you can use mic. You should use mic, and as this is first online class, this time I want to do it in a different way. More interaction will be there. So this one is sulfate ion, this one magnesium ion, और ये ion का नाम है dichromate ion. Cr2O7 ion is called dichromate ion. Dichromate ion. Okay? और ये ions के बारे में आपको knowledge होना पड़ेगा. I am showing you one PDF. In that PDF, you will get this PDF, and in that PDF, positive ion, negative ions and their valencies are given. आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में. कैन यू सी दिस? आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस? Positive and negative ions, can you see these ions? Yes, sir. Okay. So left side में positive ions and their valencies are given, right side में negative ions and their valencies are given. और ये एक selected लिस्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का, जो कि क्लास 10 में रिक्वायर्ड होता है मोस्टली. हायर क्लास में आपको और भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन क्लास 10 में इनसे काम हो जाएगा आपका. सो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और इससे आपको आयन्स और उनका वैलेंसीज थोड़ा लर्न करना होगा इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन फॉर्मूला राइटिंग. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस actually the actual method of formula writing, especially for ionic compound. तो एक एक करके आप लोग उन methods को नोट डाउन करना और steps नोट डाउन करना. I will discuss more examples here. So I am going to discuss method called crossing over of valencies. Crossing over of valencies, this method. तो इस मेथड में पहला जो रूल हम लोग डिस्कस करेंगे, यू कैन नोट डाउन द रूल. आई विल डिस्कस एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज रूल्स. सो हियर फर्स्ट वन, simply cross over
simply cross over the valencies and write on the right subscript. आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूला आपको लिखना है उनका आयोन्स का आपको नॉलेज होना पड़ेगा। आयोन्स का आप फॉर्मूला या सिंबल लिखोगे एंड देन उनका वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करोगे। क्रॉस ओवर करने के बाद आपको कहाँ लिखना है वैलेंसीज को? ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट। नाउ इफ यू लुक एट द एग्जांपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। आपको फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मूला लिखना है आपको? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको जो मैंने पीडीएफ दिखाया उससे आपको ये नॉलेज हो जाएगा, या आपको ऑलरेडी ये नॉलेज होना भी चाहिए क्लास 9 से, दैट एल्यूमिनियम आयन इज Al3+, ऑक्साइड आयन इज 2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम आयन का वैलेंसी, मैं चार्ज हटा देता हूं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फाइनल फॉर्मूला में हम लोग को चार्ज मेंशन भी नहीं करना है। एंड ऑक्साइड का वैलेंसी क्या? 2। क्रॉस ओवर द वैलेंसी एंड राइट वेयर? राइट ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट, राइट साइड में लिखना आपको। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर आपको पूछा जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, यू कैन राइट Al2O3। वैलेंसी एक्सचेंज करने के बाद, वैलेंसी क्रॉस ओवर करने के बाद, you can write down formula as Al2O3. Have you understood this particular method? इसका मेथड का फर्स्ट रूल, इज इट क्लियर? Have you understood, Kunjal? Yes, sir, I understood. Okay. Vanshika, your voice is not coming to me. There may be some mic issue, but I'm getting the voice of Kunjal. Now look at another example. Another example, if you have to write formula of ferric oxide, आपको फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो आपको आयन का इंफॉर्मेशन उस शीट से हो जाएगा, धीरे धीरे करके शीट में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन थोड़ा थोड़ा करके आपको लर्न करना होगा। सो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो आपको पता चल जाएगा Fe3+ फेरिक आयन, O2- ऑक्साइड आयन। आयरन का वैलेंसी यहाँ पे फेरिक में 3, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, एंड फॉर्मूला विल बी ferric oxide का formula Fe2O3. Have you understood this one? This example, similar example I have discussed. तो मैंने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किया इस रूल Yes, में। sir. इस रूल में 2 एग्जाम्पल डिस्कस किया है। फर्स्ट वन which I discussed is aluminium oxide, and second example which I discussed is ferric oxide. अब मैं पहले आपको एक फॉर्मूला पूछता हूँ, लेकिन आपके पास आयन्स अवेलेबल नहीं है तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, फिर भी ट्राई करते हैं। इफ यू हैव टू राइट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड, आपको एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना। मैं आपको आयन्स के बारे में थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। Al3 पॉजिटिव एंड सल्फाइड S2 नेगेटिव। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड? If you can tell me the formula of aluminium sulfide, spelling है SULPHIDE सल्फाइड में। Anyone? Formula of aluminium sulfide? If you can tell me. Kunjal, Vanshika, have you understood what is the formula of aluminium sulfide? Sir, Al2S3. Al2S3. Okay. So यहाँ एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फाइड का वैलेंसी 2
क्रॉस ओवर किया वैलेंसी को एंड फॉर्मूला इज Al2S3. इज इट क्लियर? अब एक और फॉर्मूला इस रूल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उस रूल में क्या लिखा हुआ है? सिंपली क्रॉस ओवर द वैलेंसीज एंड राइट ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट. राइट ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट. तो एक और एग्जांपल, if you have to write formula of zinc nitride, if you have to write formula of zinc nitride का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको जिंक आयन और साथ में नाइट्राइड आयन का नॉलेज होना चाहिए. सो जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव वैलेंसी 2 एंड नाइट्राइड आयन वैलेंसी 3. तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक नाइट्राइड, what is the formula of zinc nitride? If you can tell me the formula. Sir, Zn3N2. Good. Zn3N2. Simply cross over the valency and formula is Zn3N2. So I discussed first rule of this method, crossing over of valencies. हैव यू अंडरस्टूड? और ये रूल्स कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा, मुझे कुछ पता नहीं. मुझे लगता है कि मैं ऐसे समझाने से स्टूडेंट्स आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला आराम से लिख पाएंगे. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वन, फर्स्ट रूल ऑफ दिस मेथड? सबको क्लियर है? कुंजल, हैव यू Yes, अंडरस्टूड? sir. Sir, can you hear my voice now? Now I can hear Vanshika. So have you understood this rule, Vanshika? Yes, sir. Okay. So I discussed one rule and I'm going to discuss another rule. Rule number 2. You can note down the rules, huh? This will help you. Number 2. अच्छा, first rule, simply cross over the valency and write on the right subscript. And number 2, you can write same valencies get cancelled. सेम वैलेंसीज गेट कैंसिल्ड. अगर दोनों आयन का वैलेंसी सेम होगा, फार्मूला राइटिंग के लिए जो दो आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपको रिक्वायर्ड होगा, दोनों का वैलेंसी अगर सेम होगा, हम लोग वैलेंसी कैंसिल कर देंगे और लिखेंगे भी नहीं, इवन ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट. इफ यू लुक एट द एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड. हमको फार्मूला लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का, हमको फार्मूला लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का. तो मुझे नॉलेज होना चाहिए कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव, ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव. ओके, और कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, यहीं पे कैंसिल कर दो. ये आपको सबस्क्रिप्ट में लिखने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो. यू कैन राइट व्हाट? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. So what is the formula of calcium oxide? If I ask you, formula of calcium oxide is CaO. Another example, if you want to write formula of zinc sulfide, if you want to write formula of zinc sulfide, zinc ion Zn2 plus, sulfide ion S2 minus, zinc का वैलेंसी 2, sulfide का वैलेंसी 2 get cancelled and formula is ZnS. Formula is what? ZnS. You note down the examples also. तो 2 नंबर रूल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सेम वैलेंसीज गेट कैंसिल्ड. 2 नंबर रूल. Now another example, if you want to write formula of aluminium nitride, aluminium nitride, formula of aluminium nitride, aluminium nitride Al3 plus, nitride N3 minus. aluminium ALN. ओके गुड. Aln, वंशिका, Al का वैलेंसी हो गया 3 और नाइट्राइड का वैलेंसी भी 3, गेट्स कैंसिल्ड. सो इट इज Aln, सेम वैलेंसीज गेट कैंसिल्ड. So have you understood this second method, second rule? Yes, sir. Okay, so note down the examples.
Note down the examples. Aluminum nitride and zinc sulfide. Aluminum nitride formula is ALN and zinc sulfide formula is ZNS. Calcium oxide formula is CaO. Calcium oxide is CaO. So I discussed two rules there, and third one, one is not written. One is not written in the subscript. In the subscript, even after crossover. मतलब अगर किसी आयन का वैलेंसी 1 है और आपको क्रॉसओवर करके उसको लिखना भी है तो लिखना नहीं है, कहने का मतलब वो 1 लिखा ही नहीं जाता. Just look at the example to understand. I want to write formula of sodium oxide. I want to write formula of sodium oxide. Sodium oxide का formula लिखने के लिए मुझे सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन का नॉलेज होना चाहिए. सोडियम का वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 है. 1 इधर आना चाहिए, 2 इधर आना चाहिए, लेकिन 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो सीधा हम लोग लिखेंगे Na2O. We'll write what? Na2O. Similarly, if you want to write formula of पोटाशियम सल्फाइड, आपको फॉर्मूला लिखना है पोटाशियम सल्फाइड का. पोटाशियम सल्फाइड का आपको फॉर्मूला लिखना है. तो पोटाशियम आयन K प्लस, सल्फाइड आयन S2 माइनस. पोटाशियम का वैलेंसी 1, सल्फाइड का वैलेंसी 2. क्रॉस ओवर करो, वैलेंसी को 1 लिखना नहीं है, सो इट विल बी K2S. K2S. Okay, so have you understood these examples? Yes, sir. Okay, so what is the formula of sodium oxide? If I ask Na2O. Na2O. And Na2O. potassium oxide, if I ask you, I'm not getting your voice. K2S. पोटाशियम ऑक्साइड थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया मैंने, पोटाशियम ऑक्साइड पूछा है. K2O. K2O. Good one. Oh. K2O. Now one formula you should try. I will give you the idea of the ions and you just try to tell me the formula. If you have to write formula of silver nitride, आपको फॉर्मूला लिखना है सिल्वर नाइट्राइड का. सिल्वर आयन होता है Ag प्लस और नाइट्राइड आयन N3 माइनस. जल्दी से बता दो. Ag3N. गुड वंशिका. Ag3N. Ag का वैलेंसी है 1 और नाइट्राइड का वैलेंसी है 3. क्रॉसओवर करेंगे लेकिन 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा Ag3N, सिल्वर नाइट्राइड. ओके, सो फर्स्ट रूल क्या था अगर मैं आपको पूछूं? फर्स्ट रूल है, anyone who can tell me the first rule? Simply cross over of valencies of ions and to write down the valencies on the right subscript. Good, and write down where? On the right subscript. Second rule, Vanshika? Same valencies get cancelled. Okay, third one? One is not written in the subscript after crossing over valencies. Okay. Now number 4. Number 4 is the most important. जिसको number 4 rules with exception समझ में आ गया, वो आयनिक कंपाउंड का कोई भी फॉर्मूला लिख सकेगा by using that ion sheet. और वो आयन का शीट आपको एग्जामिनेशन हॉल में तो ले जाने का ऑप्शन नहीं होगा. धीरे धीरे आपको लर्न करना है डेली बेसिस में 5-6 आयन्स, और उसको धीरे धीरे लर्न करके वैलेंसी लर्न करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा क्लास 10 में. ओके, क्लास 10 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 फुल ऑफ केमिकल फॉर्मूला एंड इक्वेशंस. तो जिन भी स्टूडेंट को फॉर्मूला राइटिंग नहीं आता उनको प्रॉब्लम होगा ही क्लास 10 में इन फ्रेमिंग द इक्वेशंस. सो नंबर 4 rule I am going to discuss. So here you can write
we should use bracket. हम लोग को ब्रैकेट यूज करना चाहिए फॉर कंपाउंड आयंस. फॉर्मूला लिखते वक्त अगर कंपाउंड आयंस इन्वॉल्व होगा तो हम लोग वो सभी रूल अप्लाई करेंगे 1 2 3, और अगर कंपाउंड आयन इन्वॉल्व होगा तो ब्रैकेट भी यूज करेंगे. वी शुड यूज ब्रैकेट फॉर कंपाउंड आयन. तो पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं और फिर एक्सेप्शन के बारे में बात करूंगा. मैं एग्जांपल यहां देखना, हमको फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट का. एल्यूमिनियम सल्फेट. I want to write formula of aluminium sulfate. एल्यूमिनियम आयन मुझे पता है Al3 प्लस और सल्फेट आयन SO4 2 माइनस. सो Al3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 और सल्फेट आयन का वैलेंसी 2. अगर मैं आपको पूछता हूं कि उनमें से कौन सा कंपाउंड आयन है, एल्यूमिनियम आयन है या फिर सल्फेट आयन, कैन यू आंसर दिस? Sir, sulfate. Sulfate. Good, sulfate ion. And aluminium ion is simple ion because it is made up of one type of atom, aluminium atom. But sulfate compound ion कैसे हो गया? क्योंकि सल्फेट आयन में सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है. सल्फर भी है और साथ में क्या है? ऑक्सीजन. सो सल्फेट आयन के इधर हम लोग ले जाएंगे 3 और एल्यूमिनियम की तरफ हम लोग लाएंगे क्या? 2. एल्यूमिनियम की तरफ हम लोग लाएंगे 2. ठीक है. तो एल्यूमिनियम की तरफ हम लोग 2 लाएंगे, सल्फेट की तरफ 3 ले जाएंगे. फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 whole thrice. Have you understood? Have you understood this one? Yes, sir. Okay. And next one, यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा. यहाँ 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ. After that I will discuss this. Okay, some urgent call I will have to make. Just for 1 minute you wait. ओके. सो एक्सेप्शन में बता रहा था यहाँ पे. वैसे मैंने क्या बताया आप लोगों की, कंपाउंड आयंस के लिए हम लोगों को ब्रैकेट यूज करना चाहिए. ओके. एक्सेप्शन क्या है कंपाउंड आयंस के लिए ही? इफ valencies get cancelled, bracket is not used. Bracket is not used. Okay, मतलब ये किसके लिए बता रहा हूं मैं?
कंपाउंड आयंस के लिए। नॉर्मली कंपाउंड आयंस के लिए हम लोग को ब्रैकेट यूज करना है। एक्सेप्शन में मैं क्या लिख रहा हूँ, वैलेंसीज गेट कैंसल्ड, ब्रैकेट इज नॉट यूज्ड इवन फॉर, ज्यादा और स्पेसिफिक कर देता हूँ, इवन फॉर कंपाउंड आयंस, इवन फॉर कंपाउंड आयंस। एक तो ये है एक्सेप्शन। एक और, इफ द valency to be written in the subscript, is 1, bracket is not used. Bracket is not used. मतलब कंपाउंड आयंस के लिए ही दोनों एक्सेप्शन। एक तो वैलेंसी कैंसिल होने से हम लोग को कंपाउंड आयन में भी ब्रैकेट यूज नहीं करना है, और आपको अगर वन लिखना है सबस्क्रिप्ट में क्रॉसओवर करने के बाद, तब भी आपको ब्रैकेट यूज नहीं करना है। लेकिन कंपाउंड आयन में ब्रैकेट यूज होता है। नॉर्मली कंपाउंड आयन में यू विल हैव टू यूज ब्रैकेट। ये एग्जांपल देखो आप, इफ यू हैव टू राइट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ा। लेकिन मैं आपको और दूसरे एग्जांपल देता हूं जहां कंपाउंड आयंस होगा लेकिन हम लोग ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। देयर विल बी कंपाउंड आयंस बट ब्रैकेट इज नॉट यूज्ड। एग्जांपल देखना आप, if valencies get cancelled, bracket is not used। ठीक है, इसके लिए देखो आप, हमको फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम सल्फेट। किसका फॉर्मूला लिखना है हमको? कैल्शियम सल्फेट। तो मुझे पता है कैल्शियम आयन इज Ca2 पॉजिटिव, सल्फेट आयन इज SO4 2 नेगेटिव। कैल्शियम का वैलेंसी 2 और सल्फेट का वैलेंसी भी 2, एंड सेम वैलेंसीज गेट कैंसिल्ड, सेम वैलेंसीज गेट कैंसिल्ड, सो CaSO4। आप देखो यहाँ पे कंपाउंड आयन था सल्फेट, लेकिन मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया क्योंकि वैलेंसीज गेट कैंसिल्ड। इफ वैलेंसीज गेट कैंसिल्ड वी शुड नॉट यूज ब्रैकेट। अगर वैलेंसी कैंसिल होता है तो हम लोगों को ब्रैकेट यूज नहीं करना है। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. वंशिका एंड कुंजल, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. तो क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्रैकेट कब यूज करना चाहिए? कंपाउंड आयंस के लिए। लेकिन वैलेंसी कैंसिल होने से हम लोगों को ब्रैकेट यूज नहीं करना है। अब एक और बात मैं बता देता हूं, दैट अनदर एक्सेप्शन, मैंने क्या बोला आपको कि अगर सबस्क्रिप्ट में आपको 1 लिखना है कंपाउंड आयंस के, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं, और वैलेंसी कैंसिल होने से भी नहीं लिखा हम लोगों ने, तो ब्रैकेट यूज करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहां आप देखो, हमको फॉर्मूला लिखना है सोडियम सल्फेट का। किसका फॉर्मूला लिखना है? सोडियम सल्फेट। सोडियम आयन इज Na+, सल्फेट आयन इज SO4 2-। सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2। सल्फेट की तरफ जाना है 1 को, इधर आना है 2 को, सो इट विल बी Na2SO4, Na2SO4। तो यहां देखो, मैंने सल्फेट जो कंपाउंड आयन था उसके लिए ब्रैकेट यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोगों को जो वैलेंसी ट्रांसफर करना था सल्फेट की तरफ, जो उसका सबस्क्रिप्ट में लिखना था, राइट सबस्क्रिप्ट में, वो 1 था, और 1 के लिए ब्रैकेट यूज नहीं करना है। ओके, 1 के लिए ब्रैकेट यूज नहीं करना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जहां पे आप लोगों को इन 3 रूल को अप्लाई करके मुझे प्रॉपर आंसर देना है, फॉर्मूला बताना है। सो वो देखते हैं। सो हैव यू रिटन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन? लिखने का काम कंप्लीट हो गया आप Yes, लोगों sir. का? वंशिका, हैव यू रिटन एवरीथिंग? Vanshika, you are having some problem with mic, I think. So I hope you have written. Now I am going to ask some questions related to compound ions, और ये ब्रैकेट यूज और उसका एक्सेप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और आप लोग ट्राई करना आंसर देने का।
If I ask you formula of ferric sulfate, आपको फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूं अबाउट फेरिक सल्फेट, आयन बता देता हूं मैं यहाँ पे। फेरिक आयन होता है Fe3+, सल्फेट आयन होता है SO4 2- और 2 नेगेटिव, वी कैन से। सो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट? Fe2 within brackets SO4 3. Good. Fe2 SO4 whole thrice. Okay, within bracket SO4. So you can also pronounce like this, Fe2 SO4 whole thrice. Okay. So Kunjal, have you understood this one? Yes, sir. Now try another one. Aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide. मैं आपको आयन्स का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम इधर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ एल्यूमिनियम आयन Al3+, हाइड्रोक्साइड आयन OH-। सो OH- यहाँ कंपाउंड आयन है, तो कैन यू गेस द फॉर्मूला? कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? क्या होना चाहिए? Sir, Al within bracket OH 3 bracket close 3. Okay, it is AlOH whole thrice. Okay, aluminium hydroxide. Try another one. If I ask you formula of potassium phosphate, पोटाशियम फॉस्फेट, पोटाशियम आयन हो गया K+, फॉस्फेट आयन हो गया PO4 3 नेगेटिव। सो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ पोटाशियम फॉस्फेट? K3PO4. K3PO4 ब्रैकेट यूज होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। K3PO4 ब्रैकेट यूज क्यों नहीं होगा वंशिका? सर क्योंकि वहाँ पे 1 है एंड जो एक्सेप्शन था उसमें जो सेकंड रूल है वहाँ पे था कि इफ द वैलेंसीज टू बी रिटन इन द सबस्क्रिप्ट इज 1, ब्रैकेट इज नॉट यूज्ड। Good. So it is potassium phosphate K3PO4. Have you understood, Kunjal? Kunjal, have you understood? Yes, sir. Okay. So another example, just look at here, another example. If you have to write formula of silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना आपको, Ag प्लस सिल्वर आयन और नाइट्रेट NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। तो क्या बता सकते हो आप, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? What should be Sir, Kunjal? Ag3 then NO Ag3NO. नहीं, रॉन्ग है। वंशिका क्या? AgNO3। AgNO3। तो कुंजल ने एक मिस्टेक किया, आई थिंक आपने 3 को वैलेंसी मान लिया। वैलेंसी तो 1 है, वैलेंसी नाइट्रेट का 1 है, 1 नेगेटिव चार्ज है ना, तो वैलेंसी 1। तो Oh, okay, sir. सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? AgNO3। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड बोथ ऑफ यू? यस सर। ओके। Yes, sir. अब हम आप लोगों को मिक्स्ड एग्जाम्पल कुछ पूछेगा, जो अभी जितना भी रूल हम लोगों ने डिस्कस किया है उनका मिक्सचर बना के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं आपको आयन्स का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल आस्क यू फॉर्मूला डायरेक्टली, और नेक्स्ट क्लास हम लोग केमिकल इक्वेशन राइटिंग एंड बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, और उससे रिलेटेड एक ऑलरेडी जो वीडियो क्लास लिया हुआ है उसका लिंक में भी आपको भेज दूंगा।
आप अगर उस वीडियो को देखोगे एडवांस में और फिर क्लास करोगे तो हम लोग बहुत जल्दी ज़्यादा कवर अप कर पाएंगे. सो यू ट्राई दीज फार्मूला. अगर मैं आपको पूछूं फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, किसका फार्मूला पूछ रहा हूं मैं? एमोनियम क्लोराइड. एमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव. तो क्या होगा फार्मूला? What is the formula of ammonium chloride if I ask you? Just try this one. Vanshika, do you know the answer? Ammonium chloride. Kunjal, do you have any idea? Sir, is it NH4Cl? Good. It is NH4Cl. And next one, if I ask you formula of zinc nitrate. Zinc nitrate, if zinc ion is Zn2 positive, nitrate is NO3 negative. What is the formula of zinc nitrate? Zn and within brackets NO3 2. Within bracket NO3, then 2. 2. Okay. Zinc nitrate. Now, if I asked you formula of calcium nitride, calcium nitride, calcium ion is Ca2 positive, nitride ion is N3 negative. Ca3N2. Ca3N2 will be calcium nitride. Okay. Now, last question for today's class. If I ask you what is the formula of ammonium phosphate, if ammonium ion is NH4 plus and phosphate is PO4 3 minus, if you can tell me the formula. Ammonium phosphate, NH4 plus PO4 3 minus. Sir, is it within brackets NH4 3 PO4? Good. It is NH4 whole thrice PO4 is the formula of ammonium phosphate. Have you understood, both of you? Have you understood, got the Yes, sir. idea of writing formula? समझ में आ गया ठीक से? Yes, sir. तो Yes, sir. आप लोगों को मैं 2 शीट आज फॉरवर्ड करवाऊंगा. वो दोनों शीट में आयंस का और फॉर्मूला का डिटेल है. कुछ कॉमन एसिड्स, कुछ कॉमन गैसेस, वो सब लर्न करके नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा. नेक्स्ट क्लास कल भी हो सकता है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा उसके बारे में. सो कल हम लोग थोड़ा जल्दी केमिकल इक्वेशन राइटिंग तक पहुंच जाएंगे, so that we can start chapter 1 properly. Okay, so good night for today's class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.